Ready. Okay. Yes. Dear children, your third chapter is continued today. Synthetic fibers and fabric, the plastics. Already you all know about synthetic fibers and plastics. I discussed previously what is polymers, synthetic fibers, rayon, nylon, polyester, many others. Dear children, in our daily life, we use many types of clothes. Some clothes made by natural fibers and some clothes are made by synthetic fibers. Synthetic fibers are man-made polymers. They are synthesized in the laboratory. Nylon, rayon, polyester are the examples of synthetic fibers. Rayon. First one is rayon. What is rayon? It is the raw material for manufacturing of rayon is wood pulp. Wood pulp लकड़ी का जो पल्प होता है उसको यूज किया जाता है और ये सब्स्टिट्यूट है सिल्क थ्रेड का. पॉपुलर एवर रेयन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. पहला सिंथेटिक फाइबर जो कि ह्यूमन बींग्स के यूज में आया वो रेयन था. It was synthesized in the end of the 19th century. It is popular ever since as a substitute for silk as its texture is similar to that of silk. For this reason, it is called artificial silk. Dear children, you all understand this? Rayon is also called artificial silk. The raw material for the manufacture of rayon is wood pulp, as the raw material is cellulose of wood, which itself is a polymer. Rayon is also called regenerated fiber. Manufacturing of fiber. अब इसका कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे हम इसका उत्पादन करते हैं? The wood pulp is dissolved in an alkaline solution and thick liquid is formed. This liquid is then passed through tiny holes. The fibers coming out these tiny holes are hardened by passing them through sulfuric acid. After these fibers are hardened, they are spun into yarns and further woven into fabrics. Do you understand children? क्या होता है? सबसे पहले वुड पल्प को डिसॉल्व किया जाता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में. आफ्टर दैट जो उसका थिक लिक्विड फॉर्म होता है डिसॉल्व करने के बाद उस लिक्विड को एक पतले होल से पास कराया जाता है फोर्सली. देन दिस फाइबर्स कमिंग आउट दिस टाइनी होल्स, जब उस होल को होकर वो फाइबर्स निकलता है तो उसके बाद वो सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया जाता है क्योंकि उसमें हार्डनेस लाने के लिए, और उसके बाद वो स्पन कर दिया जाता है इनटू यार्न एंड फर्दर वोवन इनटू फैब्रिक्स. As it is made from cellulose, it absorbs sweat. It can be dyed in various colors. इसको अलग अलग रंग में डाई किया जा सकता है. It is wrinkle free and moth resistant. यानी इसमें रिंकल नहीं आता है. रिंकल का मतलब होता है कपड़े में जो मोच आ जाता है, सिकन जिसको बोल सकते हैं, वो नहीं आता है. यूजेस ऑफ रेयन. अब आ गया इसका यूजेस. मैन्युफैक्चरिंग हम लोग समझ गए कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है.
After that, uses of rayon. It is used in making garments. जितने भी गारमेंट्स होते हैं उनमें उसका यूज होता है, सच एज स्पोर्ट्स वेयर, जैकेट्स, सूट्स, सॉक्स एंड स्टॉकिंग एक्सेट्रा. It is used for making home furnishing such as curtains, bedspreads, carpets, tablecloths, etc. It is used as a cheaper substitute for silk in making fabrics, dress and sarees. Second one is nylon. 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 Dear children, nylon is the first synthetic fiber made completely from chemicals. It is the basic differences between rayon and nylon. Rayon जो होता है वो आर्टिफिशियली मतलब वो नेचुरल वुड पल्प से बनता है, जबकि नायलन जो है ये कंप्लीटली केमिकल से होता है. फ्रॉम केमिकल इट वाज मेड इन द ईयर 1931 और यह 1931 से प्रचलन में आया. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलन. द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग नायलन आर कोल, वाटर एंड एयर. क्या रॉ मटेरियल यूज होता है? कोल, वाटर एंड एयर. Complex chemical reactions are carried out at very high temperature to synthesize molten nylon. This molten liquid is then passed through spinnerets to form fibers. Spinnerets are metal plates. Just एक metal plate होता है. cups with tiny holes. उसमें भी पतला पतला होल्स होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं. थ्रू विच द molten liquid, वह जो मॉल्ट किया हुआ लिक्विड होता है उसको उसके द्वारा पास कराया जाता है. इज फोर्स्ड आउट टू फॉर्म कंटिन्यूअस फिलामेंट्स ऑफ नायलॉन. उसका कंटिन्यूअस फिलामेंट निकलता है. दिस फिलामेंट्स आर फर्दर स्पन इनटू फैब्रिक. उसके बाद वो फैब्रिक के रूप में स्पन करने के बाद उसको फैब्रिक के फॉर्म में यूज किया जाता है. अब इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट क्या है? ये बहुत मजबूत होता है. येट लाइट एंड ड्यूरेबल. हल्का भी होता है और ड्यूरेबल भी है. इट इज हाईली इलास्टिक. सेकेंड प्रॉपर्टीज का क्या है? इट इज हाईली इलास्टिक. इट एब्जॉर्ब्स लेस वाटर. कम से कम वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है. देयरफॉर इट ड्राइज वेरी क्विकली. जब कम वाटर ये एब्जॉर्ब करेगा तो ऑटोमेटिकली ये क्विकली ड्राई हो जाएगा. इट इज रिंकल फ्री. इसमें भी रिंकल नहीं होता है. रिंकल के बारे में बताएं, वो जो मोच कपड़े में जो आ जाता है वो इस फाइबर में भी नहीं होता है. इट हैज लस्टर. इसमें एक चमक होता है. यूजेस ऑफ नायलॉन. अभी तक हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को समझे. अब हम इसके यूजेस को समझे. क्या क्या यूज हमारे डेली लाइफ में होता है. नायलॉन इज यूज टू मेक द ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रशेस, पेंट ब्रशेस, हेयर ब्रशेस एक्सेट्रा. सेकेंड इज दैट इट इज यूज्ड इन मेकिंग parachutes, fishing nets, tents, ropes, etc. Second, third, it is used in a variety of garments such as sportswear, sarees, dress materials, jackets, etc. इन सब चीजों में को प्रिपेयर करने में, बनाने में इसका यूज होता है. It is most popularly used to make stockings, socks, etc. Nylon is also used to make machine parts, zip fasteners, combs, etc.
आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. नायलन. नायलन क्या है? ये केमिकल से बनने वाला एक फाइबर्स है. रेयन क्या था? रेयन सेल्यूलोज से बनने वाला, जो वुड पल्प से मिलता है उससे बनने वाला फाइबर है. इसका मतलब यह हुआ कि ये नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनता है और ये केमिकल के द्वारा. नेक्स्ट वन, पॉलिस्टर. पॉलिस्टर इज अनदर पॉलीमर एंड सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. जितने भी पॉलिस्टर्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से मिलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, यानी जो पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में जब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जब आता है और जब उसका प्रोसेसिंग किया जाता है तो उससे बहुत से ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि वेस्ट होता है, उसका कोई यूज नहीं है पेट्रोलियम में. उन वेस्ट से ही ये पॉलिस्टर के जितने भी कपड़े होते हैं या पॉलिस्टर से जो भी चीज बनता है वो पेट्रोकेमिकल के ही वेस्ट से बनता है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. इट इज अ पॉलीमर ऑफ एस्टर, टेरेलिन and dacron are some of the most common varieties of polyester. Dacron और टेरेलिन जो है इसका मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज है. पॉलिस्टर इज ऑल्सो रिंकल फ्री. इसमें भी सिकन नहीं होता, इसमें भी मोच नहीं होता है, उसमें फिर स्ट्रॉन्ग मजबूत भी होता है इसका फाइबर्स. लाइट इन वेट एंड इलास्टिक and absorb less water. Due to these properties, polyester is also extensively used in textile industries. इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में पॉलिस्टर का बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर यूज इसका किया जाता है. क्यों किया जाता है आप सभी समझ रहे हैं इसको? क्योंकि ये एक तो रिंकल फ्री होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, हल्का. लाइट का मतलब यहाँ प्रकाश नहीं समझ लेना, लाइट का मतलब हल्का. एंड ये क्या करता है? लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसमें बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है. इन सब प्रॉपर्टीज के कारण पॉलिस्टर का बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फॉर मेकिंग इट्स प्रोडक्ट. यूजेस ऑफ पॉलिस्टर्स. अब हम लोग इसके यूज के बारे में समझेंगे. It is used to make garments such as trousers, shirts and suits etc. It is blended with other fabrics to make dress materials. Blended in the sense उसमें मिश्रित किया जाता है किसी दूसरे फाइबर्स को. जब मान लो कि आप पॉलिस्टर का कोई कपड़ा बना रहे हो और जब कभी उसमें मान लो कि नायलॉन थ्रेड भी उसमें मिक्स करके उसको यूज करने लग जाएंगे तो वो उसमें मिक्स आ जाएगा और उसका नेचर उस तरह का ही हो जाएगा. इट इज ब्लेंडेड विथ अदर फैब्रिक्स टू मेक ड्रेस मटेरियल्स. टेरिकॉट और पॉलीकॉट इज अ ब्लेंडेड फैब्रिक ऑफ टेरेलिन एंड कॉटन. दिस एब्जॉर्बेंट फैब्रिक इज यूज्ड इन मेकिंग ट्राउजर्स, स्कर्ट्स, यूनिफॉर्म्स एक्सेट्रा. इन सब चीजों में इसको यूज किया जाता है बनाने में. टेरीवुल और पॉलीवुल इज विच इज अ ब्लेंडेड फैब्रिक ऑफ टेरेलिन एंड वुल इज यूज्ड इन मेकिंग सूट्स. जब टेरेलिन में वुल के फाइबर्स को मिक्स कर दिया जाता है तो हम उससे जो बनने वाला सूट होता है उसको हम लोग टेरीवुल और पॉलीवुल बोलते हैं. टेरीवुल. नेक्स्ट वन, टेरीसिल्क और पॉलीसिल्क इज ब्लेंड ऑफ सिल्क एंड टेरेलिन. इट इज यूज्ड एज अ चीपर सब्स्टिट्यूट फॉर प्योर सिल्क इन साड़ीज, ड्रेस मटेरियल्स एक्सेट्रा. अब सिल्क फाइबर से जो बनने वाला साड़ी होता है वो इतना महंगा होता है कि वो हर आदमी के बस की बात नहीं होता उसको परचेज कर पाने का. तो
जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उसको सिल्क के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी पॉलिस्टर को निकालता है। उसमें वही पॉलिस्टर में क्या होता है, टेरी सिल्क का थ्रेड उसमें मिला दिया जाता है। पॉलिस्टर इज यूज्ड इन मेकिंग जैकेट्स, विंड चीटर्स एंड क्विल्टेड जैकेट्स। अब विंड चीटर्स क्या है, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो शरीर में एकदम बिल्कुल चिपक सा जाता है। इससे क्या होता है, जो सी बैंक एरिया होता है, समुद्री क्षेत्र जो होता है, ऐसे जगह पर लोग इस तरह के कपड़ों को पहनते हैं जो हवा को ज़्यादा नहीं पकड़ता। तो विंड चीटर्स जैसा जो क्लोथ्स होता है उसको बनाने में भी पॉलिस्टर्स का यूज किया जाता है। पॉलिस्टर इज यूज्ड इन मेकिंग पेट बॉटल्स एंड जार्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग लिक्विड्स एंड अदर मटेरियल्स। पेट पॉलीथीन टेरिपैथिलेट is a type of polymer made from polyester। यह भी पॉलिस्टर से बनता है। It is also used in making a variety of utensils। बहुत तरह के छोटे छोटे यूटेंसिल्स को भी बनाने में। हाउसहोल्ड आर्टिकल्स, वायर्स, फिल्म, रोल्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को भी बनाने में पॉलिस्टर का यूज होता है। नेक्स्ट एक्रिलिक। अभी तक हम लोग पॉलिस्टर के बारे में पढ़े, पॉलिस्टर, देन एक्रिलिक। यह भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही है। एक्रिलिक इज synthetic fiber that resembles wool and is used as a cheaper substitute for wool। वुल का चीपर सब्स्टिट्यूट के रूप में एक्रिलिक का यूज होता है, क्योंकि वुल